ठीक है, आप आओ लिंक पे। पीपीटी आपका मैडम है? अच्छा। और सर जो अभी 2 आई हैं उनसे पूछ रहा है ना? हाँ, वो तो आ रहा है, उनका तो है। आ रहा है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, करवा देंगे। क्लियर है कि बाद में एंड टाइम पे होगा। खंडित आपके पास अवेलेबल क्या कॉस्ट है? नहीं, थोड़ा हमें अंदाज़ा तो बताइए, तभी तो हम बताएंगे हमारा बजट है। आप बना भी देंगे हमारा बजट है, आप मुझे बताइए वो भी कम है। आधा बजट है हमारा।
साढ़े 6 और तो कोई 12 वाला कर देना, 12 20 वाले को 12 में एडजस्ट कर देना, वही काम उसी का पेज, हाँ उसी काम में पेज।
आगे आप लोग खाली नहीं हो गया, आगे बैठिए बच्चों, आगे बैठो। ये पूरा प्रोग्राम में डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है भाई, ये मत सोचिएगा आपका अटेंडेंस और सब चीज सब लोग देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट आगे आगे बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ इसी आगे आवाज एकदम पास में जाके स्लाइड पीछे वाले आगे आओ, आप लोग आगे आओ। अगर फायदा लेना हो तो साइड साइड ना नहीं बैठ। हम ऐसा ही टीचर के पास बैठना चाहिए। हाँ तुम लोग दूर बैठते हो। और सर्टिफिकेट केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो यहाँ बैठेंगे, रजिस्ट्रेशन मतलब जीरो। हाँ और सभी को क्वेश्चन बनाने का जैसा 20 हजार बताया, सभी को जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी को क्वेश्चन बना के देने हैं। अब तो आप वही लिख के नहीं लाइए। क्या हमको केमिकल्स नहीं नहीं सर, बच्चे सब लोग को आप बता दें कि कौन कौन से चाहिए। 12 सैंपल है इसके सर, 12 सैंपल है ना। मैं इसको कहती हूँ सर, आपके आपसे बोलो सर्टिफिकेट लीजिएगा। अटेंडेंस करवा लीजिए।
अभिलाषी कोई आ रहा है और भी आ रहा है क्या? नहीं अब डॉक्टर से बात करेंगे। Okay. So I welcome you all in this one-day seminar, and thank you for registering. I hope when we go out from this room in the evening, you go with some kind of confidence, if not full confidence, that IPR has lots of things to do with yourself. Not for us, not for anyone else. Think about yourself, how your intellectual property can help you, and then it will help your department if we are in government system or in private sector if you are going to join. Or you can think of choosing a profession of IPR attorney in the future. Maybe not as an independent lawyer, but now there are courses which they offer all over the world where IPR is separate subject in the law, if I am correct, right? So it's not criminal law, it's not civil law, it's the IPR law courses. And being biological scientist, you will have always edge over madam like this who has passed not through IPR. So in biology it has lots of things to do, and that's why agriculture and agroforestry comes. Coming to the patent laws and all, Madam Sadhana is sitting here and her team is there, students. Think about process or product patent, and that Madam is going to discuss a little bit. It's an awareness seminar, so I am not going to take much of your time. I urge each one of you, and I know many of them are from genetics division who can speak big, and who can also speak small, not speak big. So you have opportunity to talk even small and molecule or in law, in the framework of IPR, and big, whatever you want to ask. So be open and learn and teach us also. So it's going to be an interactive session, and let's hope we are successful by end of this evening. Thank you very much. And now I request Dr. Professor Shukla, Siddharth Shukla, who is not far from here. He is coming from Ayodhya. He is a professor there, and he has lots of experience in teaching, and he will be sharing his views with us. And let's have a clap for him for coming here. Thank you very much. And now floor is yours for how much time? 1 hour? 40 minutes. It's your time, so maximum 1 hour, so keep something for the discussion, you know. 40 minutes for the discussion. Thank you, sir. If you have PPT, you can go there, and if you want to speak, you want the other. So, very good.
before moving to this topic, what I feel, you should know what exactly this intellectual property is. So whenever we talk about this intellectual property, or whenever we define this intellectual property, if you define this intellectual property as जब माइक और चीज so okay. So when we talk about this intellectual property, we generally define it as something which we create using our own mind or intellect. But here, I would say intellect is the right word to describe more appropriately, more comprehensively the intellectual property rather than using mind. Because देखिए हमारे कल्चर में ऐसा कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता में जो है भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, इंद्रियाणि परम्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु च मींस इंद्रिया सेंसेस जो इंद्रिया है वो व्यक्ति से परे, वो व्यक्ति से परे क्या है, मन है, वो मन से परे बुद्धि है ना? और जो चीज बुद्धि से परे हो वो क्या है, वो स्वयं भगवान है ना, वो स्वयं भगवान है। तो जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि माइंड मतलब मन, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, these are two different things, है ना, these are two different things, मन and intellect. And you can see the intellect is much more closer to the God as compared to mind or other things, isn't it? So it covers each and everything of this earth, whatsoever it may be. It may be natural or man-made. Okay, friends. Then now comes question: how do we create anything? हम कोई चीज कैसे बनाते हैं? कैसे कोई चीज हमारे मतलब कोई चीज बनाना है घर को कैसे बनाते हैं? पहले सोचते हैं, first of all idea comes in our mind, then we delineate that idea into some physical form, isn't it? So from where to this idea comes? This idea comes from our intellect. ये आइडिया कहाँ से आता है? इंटेलेक्ट से आता है, and then we delineate something using our idea. So I can say the idea is our actual intellectual property, because intellect is God. वो हमारा नहीं है ना? वो हमारा नहीं है। इंटेलेक्ट जो है वो ऐसी चीज है कि भाई इंटेलेक्ट ही एक ऐसी चीज है जिसको पाके हम सुपीरियर हो गए और ऑर्गेनिज्म से। एक एग्जांपल मैं लूँ अगर, कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को देखते हैं आप लोग, है ना? तो डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या है कि खाना दिया, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो क्या करेगा? नहीं खाएगा, छोड़ के चला जाएगा, और अगर खाली है तो उसको खा लेगा। ये तो उसके मन पे डिपेंडेंट है। लेकिन इंटेलेक्ट तब काम आता है जब वही डोमेस्टिक एनिमल उस रोटी के टुकड़े को उठा के और ले जाके रख दे कहीं कि फॉर फ्यूचर यूज, वहां उसका इंटेलेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो है जितने भी हम लोग हैं वो भाषा जो है जानवरों की तो जानते नहीं कि उसके इंटेलेक्ट को समझ सकते हैं हम लोग, हालांकि है इंटेलेक्ट एनिमल्स में भी है, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे बेसिकली वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इंटेलेक्ट। सो ये इन लीगल सेंस व्हेन वी थिंक अबाउट प्रॉपर्टी, द सेकंड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज मे बी ऑफ टू टाइप्स। एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड द सेकंड वन इज intangible properties. Tangible property means to which we can see or touch.
है ना? That means physical property, like money, land, this fan, this ceiling, this table, and this dice. These are the physical properties. Whereas intangible properties are those properties to which we cannot touch or see, like idea. That is intellectual property. So the intellectual property is intangible, isn't it? idea को छू सकते हैं? छू नहीं सकते. But it is very prone to plagiarism. But it is very prone to plagiarism. इसको कॉपी जरूर किया जा सकता है. You can see the example of famous scientists, है ना? कि कैसे जो है बिना किए इधर से उधर कॉपी करके पब्लिकेशन हो जाता है. तो क्या करते हैं? आइडिया कॉपी होता है ना? और भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सिंपल एग्जांपल कि कैसे इंटेंजिबल है. सपोज इफ आई एम राइटिंग a letter to you and the moment I deliver that letter to you, it will become your physical property together with the ink, and you can use that letter either for making more board or making fan or putting it somewhere else. But the idea delineated on that paper would be my intellectual property. You cannot copy it. You cannot copy that sentences. So could you understand? Intellectual property जो है वो basically idea है. Now अभी मैंने कहा कि intellect is the only character which is given by God to us, which makes us supreme than other creatures of the earth. Thus, we exactly delineate, we can exactly delineate our idea into some physical form, whereas other organisms can't. This intellectual property is as important as physical property, so it should be protected. So to protect intellectual properties from plagiarism, creators of such properties are vested with several rights, and that is called intellectual property right. Right? This IPRs are the right given to persons over the creations of their intellect. That is the same thing what I said. The IPR usually give the creator an exclusive legal right over the use of his or her creation for a certain period of time. Forever you never be granted. कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं हो जाएगा कि आपको ग्रांट हो गया इसका कॉपीराइट. उसका एक समय होगा. And such rights are granted to the creators of intellectual property so that their creations cannot be used by others without their prior permission. And these includes the right to reproduce such work, the right to sell such work, and of course the right to create other forms of such work. Now, why do we need legal protection of these intellectual properties? It's very simple. इसका फायदा कोई और न उठा सके, है ना? शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा तो इसका फायदा कोई और न उठा सके, इसीलिए जो है ये प्रोटेक्शन इसकी आवश्यकता है. तो इट इज टू फैसिलिटेट क्रिएटिविटी, टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इट्स डिसेमिनेशन, टू गिव रिकॉग्निशन टू द एफर्ट्स ऑफ क्रिएटर, and to encourage investment of skill, time, finance, and other resources into innovation activities in a manner that is beneficial to the society. Okay? Now, what are the advantages? In short, I can say, क्या advantage है इससे? एक तो जो भी intellectual property का owner है ना, वो उस प्रॉपर्टी का फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है, उससे कोई दूसरा नहीं लेगा, है ना. दूसरी, इस जब हम किसी चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी घोषित उसको प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि उसकी ट्रेड मार्किंग करते हैं एक तरह से, तो ब्रांड वैल्यू भी एक तरह से बनती है,
जैसे अगर मैं कोई फोन उठा लूँ, सपोज दिस, कोई सा भी फोन उठा लूँ, देखने से ही बता देंगे कौन सा फोन है ना? इसके ब्रांड वैल्यू का पता चल जाएगा कि कौन सा फोन है। कुछ लिखा नहीं है कि कहाँ कौन सा फोन है, केवल ट्रेडमार्क, और उसी को देख के लोग फोन खरीदते हैं। यानी कि रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं से बढ़ जाती है। ठीक है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सब जो एडवांटेजेस है ऑफ यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सो आई कैन रीड IPR protection gives business a competitive advantage over the similar business. IPR protection prevents unauthorized use of intellectual property and works. IPR enhances the value of company and also open avenues for collaboration and opportunities for generating income, such as by entering into licensing agreement to exploit the invention. And IPR helps to attract client and create brand value. Isn't it? Now, types of intellectual property right. कई तरह के हैं, कई तरह का किताबों में अगर जाएंगे तो कई तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग। लेकिन देखिए बेसिकली तो ये लॉ का सब्जेक्ट है, बट हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट जो आसान लगता है ना कि इसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया जाए ताकि हमें समझ में आ सके। साफ साफ बात है, हमें समझ में आ जाए। अब चाहे नाक ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, तो देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसकी 4 मेजर कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज कॉपीराइट, द सेकंड वन इज ट्रेडमार्क, थर्ड वन इज पेटेंट एंड द फोर्थ वन इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, सो लेट अस टेक ईच ऑफ देम वन बाय वन। कॉपीराइट, see this copyright is purely a Western concept. This has never been a part of our culture. कभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गीता में जो है, फिर अगेन कहूंगा कि कृष्ण ने क्या कहा है, मान अपमान्यो स्तुल्यो स्तुल्यो मित्र निपक्षयो सर्वाहं परित्यागी गुणातीत स उच्यते। What it means, whatever we do and did, or you can say we do and did rely that whatever we are doing is all that due to blessings of God. We are the medium only and the actual doer is God. जो हम करते हैं, जो हमारी सनातन परंपरा है और जो उसमें हम लोग करते हैं, तो क्या सोचते हैं? आप देखिए कि कोई भी चीज करते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं करता धरता है, सब ऊपर वाला है। अब जब ऊपर वाला है तो देयर इज नो नीड ऑफ कॉपीराइट है। कॉपीराइट की कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि सब करता धरता तो ऊपर का है, हमारा कुछ है ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो काहे का अधिकार। और इसी विश्वास के साथ हम चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। इवन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, उस समय तक भी यही हम लोग अपने दिमाग में, हम लोग का जो विश्वास था वो यही था कि एक्चुअल डूअर इज गॉड और हम लोग केवल मीडियम है। बट थैंक्स टू ब्रिटिशर्स, भले ही गुलाम बना दिया था हम लोगों को इन अंग्रेजों ने, लेकिन थैंक्स की रियलाइज कराया उन्होंने अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि आप भले ही अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन आपके भगवान सर्वमान्य नहीं। हम अंग्रेज लोगों के भगवान दूसरे हैं, आप अपने भगवान की कृपा मानते रहिए, हम आपका सामान ले जाके बेच के फायदा कमा लेंगे, है ना। तब जागरूकता आई। एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड the first literary copyright act was passed, and I think it was in 1842 in London. And later on in India, where British East India Company was ruling, the Indian Copyright Act was passed in 1847. ठीक है? And through this Copyright Act,
the copyright was defined and the provisions were made कि कैसे इसका कॉपीराइट किया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपीराइट किया जाए, इसके लिए प्रोविजन मेड किया गया. तो इट वाज हिस्टोरिकल, बट देयर वाज certain problem of language and it didn't cover some aspects of copyright and so it was rejected finally. चला नहीं, historically important था क्योंकि इसीलिए डिस्क्राइब किया कॉपीराइट क्या है वास्तव, ठीक है ना. So independence, what we did, अब जागरूक तो हो गए थे, what we did, we followed British Copyright Act that was in 1911 or till independence, and after independence in 1957 the Copyright Act of India was passed, which was amended further in I think 83, 84, 92 and 94 and subsequently 99, और वही आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो this copyright includes legal protection of expression in ideas in literary and artistic works. देखिए मैंने पहले उसमें स्लाइड में आपको दिखाया था, मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगा. यहाँ ये यू कैन सी, ये मैंने कुछ एरियाज देखे हैं. तो where do we use our intellect to create something? We do use our intellect to create something in the areas of literature, arts, commerce, agriculture, and science and technology. इसके अलावा क्या है और कुछ है? सारी चीजें इसमें आ जा रही हैं. इन्हीं एरियाज में हम कुछ सोच रहे हैं और उसमें नया नया कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ जो दिया जा रहा है कॉपीराइट, ये कॉपीराइट किसके लिए है? ये सिर्फ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए. लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड बुक्स एंड राइटिंग्स, जो पेपर्स आप लिखते हैं दैट इज लिटरेरी वर्क, एंड आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूड्स म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिल्म्स and computer programs. Isn't it? Is clear? No. What are the rights which are protected by copyright? Actually, the section 51, I think, मैडम ज़्यादा क्लियर करेंगी बाद में. मुझे तो जहाँ तक याद है, तो सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट वो जो है बताता है कि क्या क्या राइट्स जो है वो ऑथर को दिए जाते हैं. तो इसमें है, पहला है इकोनॉमिक राइट और दूसरा है मॉरल राइट. इकोनॉमिक राइट सिंपली भाई हमारा सामान है, इसका फायदा कौन उठाएगा? हम ही उठाएंगे, है ना. दूसरा कोई न ले जाए तो इसका फायदा हम ही उठाएंगे. तो इकोनॉमिक राइट मिलता है. जो भी लीगल ओनर है ना, उस सामान का अगर यूज कोई भी करता है, चाहे वो करे चाहे कोई और करे, तो उसका फायदा जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो सिर्फ ओनर को होगा और क्रिएटर को होगा. दूसरा मॉरल राइट, ये क्या कहता है? ये प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर. मीन्स कि जैसे कोई चीज लिखा है, मान लीजिए हमने जर्नल में कोई पेपर लिखा है, उसका कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है ना, उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन दैट्स टू इज प्रोटेक्टेड, है ना. दैट विल कम अंडर दिस मॉरल राइट. नाउ पीरियड ऑफ कॉपीराइट. कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? कितने दिन तक मिलेगा कॉपीराइट से लीगल प्रोटेक्शन? जीवन भर. जीवन भर प्लस मरने के बाद ना कहो यार, प्लस 60 ईयर्स कह दो. जीवन भर प्लस 60 ईयर्स है, मरना वर्ड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. तो जीवन भर और प्लस 60 ईयर्स
यानी कि मरने के बाद यूज करना पड़ रहा है 60 ईयर्स तक। ये इंडियन कॉपीराइट है। यूके में इसको 70 साल तक है, इंडिया में हम 60 साल तक भी देते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। इंफ्रिंजमेंट मीन्स क्या क्या एक्ट्स हैं जिससे हम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हैं, है ना, उल्लंघन करते हैं। कि हम ठीक करेंगे तो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। और ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट, इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनऑथराइज्ड यूज of already registered copyright material would be the act of infringement। मतलब आप अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कॉपीराइट मटेरियल का बिना ओनर को बताए, विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द ओनर, दैट वुड बी एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, बताना जरूरी है। सेकेंड वन, use, sale or distribution, use, sale or sale, purchase and distribution you can say of copyrighted material without prior permission, ये भी जो है वो आपके लिए एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है कि आप बिना परमिशन के उसको बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बन सकते, और कॉपी भी आप उसका नहीं कर सकते। ये कब? जब आप इससे फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं, है ना। जब आप इससे फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं, बेच रहे हैं तो जरूर पैसा ही मिलेगा, तभी तो बेच रहे हैं, है ना। तो लेकिन उसी कॉपीराइट एक्ट के 52 सेक्शन 52 में कहा गया कि कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाए तो ये एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। जैसे पढ़ाने के लिए, अक्सर आपके दिमाग में आ जाएगा कि टीचर भी पढ़ाता है कहीं ना कहीं से, और कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है उस पर केस छोड़ दो, भैया हम लोग तो जेल में ही बैठे रहेंगे हमेशा, है। तो कॉपीराइट एक्ट जो है वो वहाँ पे छूट है, आप पढ़ा सकते हो, है ना, वहाँ पढ़ा सकते हो। चूंकि मैं अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन भी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, तो मैं ये भी कहूँगा कि किसी लाइब्रेरी में अगर उसकी कॉपी की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी किया जा सकता है, उसको भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बनाने में अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे भी इसे एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। या इवन किसी स्टूडेंट के द्वारा भी यूज किया जा रहा है, बशर्ते मेंशन कर दें तो या पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं आप, सब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं कर ले रहे हैं, तो वो आपको एक्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स फॉर कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। पहला है बर्न कन्वेंशन, पहला है बर्न कन्वेंशन, और ये कब हुआ? 1886 में। ये पहला स्टेप था, ये विश्व का पहला स्टेप था 1886 में। कहाँ ऐसा कंसेप्ट था कि किसी चीज को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है याद रखें, ये कहाँ याद था, लेकिन ये विश्व में सबसे पहला कदम था। बर्न कन्वेंशन, बर्न स्विट्जरलैंड में है, वहाँ 1886 में कन्वेंशन हुआ, है ना। और उस कन्वेंशन में कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात की थी। अब इस कन्वेंशन का ये कन्वेंशन जो था वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित था। पहला जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, और तीसरा था
प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ठीक है। और तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ, आई थिंक उसका मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है क्योंकि हमेशा यूज में तो रहता नहीं है, मुझे याद आएगा तो आप लोग बता देंगे। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। सो इसका मतलब क्या है? पहला जो मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये था कि जो बर्न कन्वेंशन में जितने भी देश शामिल हुए थे, ठीक है, आई थिंक लगभग 167 या 187 देश उसमें शामिल हुए थे, तो उन देशों में अगर कहीं पे भी कोई पेटेंट लिया जाता है, किसी भी देश में, किसी भी देश में कोई पेटेंट लिया जाता है तो वो सारे सदस्य देशों के बीच मान्य होगा, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट ये कहता है कि अगर किसी एक देश में लिया गया है तो वो उसी रूप में हर जगह मान्य होगा। दूसरा क्या था? प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। ये क्या था? ये जो लागू होगा कॉपीराइट का प्रावधान, ये अनकंडीशनल होगा, ये अनकंडीशनल होगा। वहां ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में चूंकि माहौल ऐसा है या हमारे देश में जलवायु ऐसी है या सो ऑन एंड सो फोर्थ लाइक दैट, ये चीज ऐसा है तो हम इसको ऐसे नहीं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लागू कर रहे हैं, एज सच अनकंडीशनल। और तीसरा है इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिस देश में वो क्रिएट किया गया हो उसी देश में उसका प्रोटेक्शन किया जाए, वो किसी भी देश में जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां पे उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है और वो समान रूप से लागू होगा, ठीक है। तो ये था बर्न कन्वेंशन। दूसरा है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन एक्चुअली इसको यूनेस्को ने कराया था और इट वाज डेवलप्ड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनेस्को, और ये एज एन अल्टरनेटिव ऑफ बर्न कन्वेंशन। और ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट पे आधारित था, यानी कि जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे उनमें से किसी भी कंट्री में अगर कोई कॉपीराइट होता है तो वो समान रूप से हर जगह लागू हो जाएगा। थर्ड वन इज रोम कन्वेंशन। रोम, इसमें क्या था? रोम कन्वेंशन में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, अभी तक हम लोग केवल लिखने पढ़ने की बात कर रहे थे, डांस और म्यूजिक की बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो डांस और म्यूजिक और ब्रॉडकास्टिंग और ये जो चल रहा है इसको कौन प्रोटेक्ट किया? तो रोम कन्वेंशन में परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो रोम कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्ट की गई है, ठीक है। एंड देन लास्टली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी 1996, है ना। ये क्या था? ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी था और इसके अंतर्गत क्या प्रोटेक्ट किया गया, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल तो मैम बताएंगे लाभ की, बाकी हम लोग छोटा छोटा जो जानना जरूरी है सिर्फ उसी पे चलेंगे। यहाँ पे ये 1996 वो समय था जब कंप्यूटर आ गया था, पता नहीं साल लोग जानते होंगे उस समय एक आध कंप्यूटर, जैसे हम लोग का उसी समय का PhD है, तो कंप्यूटर कहीं पंतनगर में मैं पढ़ता था, पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो एक जगह बड़ी बाजार में एक कंप्यूटर था पहले, तो वहाँ लाइन लगा के हम लोग अपनी थीसिस टाइप करते थे और अदरवाइज टाइपराइटर से काम चलता था, मतलब आ गया था कंप्यूटर जन जन तक। तो 1996 का वो समय है जब हम डिजिटल एनवायरनमेंट में प्रवेश कर चुके थे, तो यहाँ जो प्रोटेक्शन दिया गया वो डिजिटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ये ट्रीटी था। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, ठीक है।
ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क तो नाम ही पता चला है ना, व्यापार चिन्ह है। अभी दिखाया भी फोन को, फोन देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, पेन होता है, नगारा की पेन, सब कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क होता है। लोगो, लोगो कहेंगे, नेम भी हो सकता है उसका, कोई मार्क भी हो सकता है ना। तो ये ट्रेडमार्क कहलाता है। और ये ट्रेडमार्क ही उस मैन्युफैक्चरर या उस ओनर को का मार्क होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस ट्रेडमार्क का जो है वो, वैसे तो गुडविल के अलावा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल गुडविल ही बताता है। तो मेन फंक्शन इस ट्रेडमार्क का है वो 3 है। एक तो बताता है कि ट्रेडमार्क अबाउट द गुड बताता है, ओरिजिन बताता है इसका, और क्वालिटी बताता है कि क्या क्वालिटी है। जैसे कि अभी हमने एक ट्रेडमार्क दिखाया तो एक चलते चलाते आपको क्वालिटी का पता चल जाता है ये किस तरह का चीज होगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क देखिए, फिर ट्रेडमार्क एक्ट के अनुसार जो उसका सेक्शन 29 है, उसके अनुसार जो ट्रेडमार्किंग की जाती है इंडिया में वो, और उसके अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल ट्रेडमार्क जो है वो उसकी 45 क्लासेस हैं। 45 क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क आर देयर। कितनी क्लासेस हैं? 45 क्लासेस। और एक्चुअली ट्रेडमार्क दिया किसके लिए जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज जैसे स्टेट बैंक का लोगो अगर लगा होगा, केवल लोगो लगा रहे, स्टेट बैंक ना लिखा रहे तो आप क्या समझेंगे? स्टेट बैंक है, निशान बता देना, बहुत ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक लिख लीजिए, लोगो बना है, पहचान लिया है ना। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये गुड्स एंड सर्विस के लिए दिया जाता है। टोटल अगर देखा जाए तो 45 क्लासेस हैं ऑफ ट्रेडमार्क। इन 45 में से जो 36 हैं वो प्रोडक्ट मार्क्स हैं। 35 क्लासेस जो हैं वो 34 क्लासेस जो है वो प्रोडक्ट क्लास के हैं, और 11 जो मार्क्स हैं वो सर्विस मार्क है। ठीक है, 11 जो है वो सर्विस मार्क है। और कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने सबको अलग अलग कैटेगराइज करके जो फिर याद करना, मैंने कहा शुरू में बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, जो आसानी से याद हो जाए वही करूँगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वही नोट करके ले आ दिया मैंने। इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रोडक्ट मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, शेप मार्क, पैटर्न मार्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए फिर, हाँ यार, यू आर but if we will say if we write the books, it is what means जब भी हम बुक्स लिखते हैं तो सब बिलियन यहाँ से चलती है, बिलियन यहाँ से चलती है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें साइंस को टारगेट की बुक्स है तो सर वो आज तक भी चल रही है। तो मतलब अगर 60 इयर्स के तो अब तक उनको टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना। उन्होंने कॉपीराइट लिया था डार्विन ने, या डार्विन ने जो फिंच देखी थी, उसके बाद किसी ने फिर से ये जो that's what I'm saying, that's what I'm saying, कि initially we were not aware of that, है ना। हम सनातन धर्म वाले हैं, हम कहते थे भगवान कर रहा है। तो चलिए पुरानी बात है। तो जो भी चीज़ें मतलब पहले लिखी थी, आज भी कुछ उर्दू साहित्य है, कुछ हिंदी साहित्य ऐसा है जिसका आज तक तो आखिर ही नहीं पता है कि कौन है। चलिए, जिसका मैंने ले भी लिया, जिसका मान सपोज करो मुझे पता था, डेथ के 60 ईयर्स बाद अब उसका कॉपीराइट का अधिकार खत्म हो जाता है। Now you can use that, unless कि कोई दूसरा ना उसको कॉपीराइट नकल करके करा देंगे। आज 60 साल पूरा हुआ, अपने नाम से जो अमेरिकन कर रहे हैं, हल्दी ले जाके, अभी मैडम ने बताया था ना, हल्दी और नहीं प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं, करा वो ले गए, तो वही हाल होगा। रामायण लिखो तो अब कॉपीराइट की डेट खत्म हो गई। कोई जिसमें ट्रेडमार्किंग को इंटरनेशनल किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि सदस्य हो, किसी भी देश में अगर वो प्रोटेक्टेड है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ
इसी में प्रोविजन किया गया कि अब जो ट्रेडमार्क का जो पीरियड है वो 10 साल होगा। ठीक है, नाउ ट्रेडमार्क लॉ की 1994, इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये भी ट्रेडमार्क पे ही था। अमूमन सारे प्रिंसिपल्स वही हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें ये 2-3 चीज़ें जोड़ी गई जिन पर डिस्कशन हुआ। जैसे मैंने कलेक्टिव मार्क कहा, सर्टिफिकेशन मार्क कहा, गारंटी मार्क कहा, है ना, तो इन सबों को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट अब आता है पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेटेंट। तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है, दैट इज पेटेंट। नॉर्मली ये इंडस्ट्रियल और जो इनोवेशन एक्टिविटीज हैं उसके लिए दिया जाता है, यानी कि साइंटिफिक एरिया में आप कह रहे हैं साइंस में दिया जाएगा, या कुछ इनोवेशन आप कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ पेटेंट ग्रांट किया जाता है। और ख़ासतौर से ये जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं नॉर्मली इंडस्ट्रीज में यूजफुल होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और साइंटिफिक सेक्टर कह सकते हैं। तो दिस पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted for an invention or innovation which might be a product, a method, or a process that introduces a novel way of doing something or offers a new technical solution to that problem. यानी कि ये इनोवेशन पे आधारित है, और जो इनोवेशन हमने किया है उसको पेटेंट कराने के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, इट इज द राइट ऑफ मोनोपोली ग्रांटेड, अदर वर्ड आई कैन से इट इज द राइट वर्ड ऑफ मोनोपोली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु हैज इन्वेंटेड अ न्यू यूजफुल आर्टिकल, improvement of an existing article or a new process of making an article. ठीक है, now फिर वही पीरियड और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, फिर मैं वही 2 चीज कहूँगा, ये तो रट ही लीजिए कि यही करना है, अगर ये हुआ तो फिर मतलब धोखा हुआ, है ना। ये पीरियड जो है थोड़ा सा याद रखिए, पीरियड कितने दिनों के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है, 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है, फॉरएवर नहीं। आज ग्रांट किया जाएगा से 20 साल। नाउ पेटेंट कई तरह के होते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, हाइब्रिड पेटेंट, पेटेंट ऑफ एडिशन, सीक्रेट पेटेंट, डिपेंडेंट पेटेंट, है ना, डिपेंडेंट पेटेंट एंड पेटी पेटेंट, और भी नाम है, इतना आसानी से याद हो जाएगा इसलिए, है ना, और भी अदर करके दिया जाता है। अब क्या है, प्रोडक्ट पेटेंट आप समझ ही रहे होंगे कि किसी प्रोडक्ट को पेटेंट कराया जाए, जैसे हमने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके जो है कुछ बनाया फिजिकल फॉर्म में, और उस फिजिकल फॉर्म को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, सब माइक्रोफोन बनाया, अब ये माइक्रोफोन को यूज करेगा, दैट वुड बी माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इफ यू यूज इट, तो आपको यू हैव टू पे। दूसरा है प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट मतलब इस माइक्रोफोन को बनाने में जो प्रोसेस यूज हुआ है उसको भी पेटेंट कराया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट भी पेटेंट करें, प्रोसेस भी पेटेंट करा सकते हैं। हाइब्रिड दोनों को करा लीजिए, प्रोसेस भी और प्रोडक्ट भी। ज़्यादा चतुर है कभी नहीं यूज कर देंगे, है ना, दैट इज हाइब्रिड। पेटेंट ऑफ एडिशन, ये क्या है, पेटेंट ऑफ एडिशन, पेटेंट ऑफ एडिशन मतलब कि ऑलरेडी कोई पेटेंटेड थिंग है, कुछ नया, पेटेंट ऑफ एडिशन। सीक्रेट पेटेंट, ऐसे पेटेंट से क्या फायदा जो सीक्रेट करेगा, जिसका बेनिफिशियल पैसा मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या, कोई फायदा है साहब। सीक्रेट पेटेंट भी होता है, सीक्रेट पेटेंट जैसे कि जो आर्मी के लिए हो, है ना, तो
कोई आर्म्स एमिनेशन या ये न्यूक्लियर रिएक्टर या इस तरह के जो तरीके बना रहे हैं उसका पेटेंट है, क्योंकि जो आम लोगों को नहीं दिखाया लेकिन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, दैट विल कम अंडर दिस सीक्रेट पेटेंट। डिपेंडेंट पेटेंट ये, अब ये वो पेटेंट है कि सपोज कीजिए आप कुछ बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको पुराना कोई पेटेंट है उसका उपयोग करना पड़ रहा है, बात समझ रहे हैं मेरी? दैट विल बी डिपेंडेंट पेटेंट। ठीक है, एक चीज और बताते हैं आपको, ये हाइब्रिड पेटेंट जो है ना, हाइब्रिड पेटेंट या पेटेंट ऑफ एडिशन, सॉरी पेटेंट ऑफ एडिशन, आपने कोई चीज उसमें ऐड किया, अब आप सोचें कि उसका भी हमें जैसा 20 साल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ये जो बचा हुआ समय है 20 साल में अगर 10 साल गुजर गया और 10वें साल में आपने उसमें एडिशन किया तो बचा हुआ 10 साल ही मिलेगा आपको, यहाँ 20 साल आपको नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट पेटेंट समझ में आ गया? देन पेटी पेटेंट, इसको लघु पेटेंट में कहते हैं, सॉफ्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। ये पेटी पेटेंट क्या है कि आजकल हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं और कभी कभी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होने के कारण क्या होता है कि उस टेक्निक्स का यूज करके हम पुराने पेटेंट में कुछ यूज करते हैं तो कुछ नया निकल के आ जाता है, और जब नया निकल के आ जाता है तो उसको तुरंत पेटेंट करा लें, दैट इज पेटी पेटेंट। यस, फूड प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। देखिए पेटेंट जो चीज होता है, जैसे नॉर्मली नया इनोवेशन कोई भी है, इन्वेंशन है ना, हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे, नया इन्वेंशन कोई भी चीज है, वैसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए तो आजकल जीआई वाला चल रहा है ना, लेकिन ठीक है अगर उसमें भी कोई नयापन है यू कैन डू, है ना। अब यहाँ दो है, वैसे तो चिप्स भी है लेकिन चिप्स तो हर जगह, जितने भी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की हर जगह है, उसको नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको दिला दिया हूँ। पेरिस कन्वेंशन जो मैंने बताया पिछली बार, वो ट्रेडमार्क के लिए भी था, साथ ही साथ पेटेंट के लिए भी उसमें चर्चा की गई थी, वो सेम कन्वेंशन था। दूसरा रियो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब समझ रियो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ था, और यहाँ हमने ये माना था कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हमने इम्पोर्टेंस दिया था, एक तो बायोडाइवर्सिटी और दूसरा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म है देखा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है बायो रिसोर्स, बायो रिसोर्स मतलब प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स या इनके प्रोडक्ट्स, या इनके प्रोडक्ट्स, दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, और उसमें इन दोनों के कंजर्वेशन की बात कही गई थी, और इस कन्वेंशन ऑफ CBD कहने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें दो प्रोटोकॉल थे, एक कार्टाजीना और एक नगोया, आप लोग जानते होंगे। तो उसके तहत जो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की बात भी की गई थी। ठीक है, इसी को आधार बना के इंडियन बायोलॉजिकल एक्ट, डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया, जहाँ पे हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करना वहाँ से सीखा, उसी को आधार बना के ये एक्ट बना, और इस एक्ट में ये कहा गया कि हमारे बायो रिसोर्स के यूज से जो अर्निंग हो रही है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारा, जो बायो रिसोर्स है हमारे कंट्री का वो भी हमारा, अगर उससे हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे कुछ नया कर रहे हैं, वो भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग यहाँ बहुत से लोग हैं कि नीम में ये होता है, तुलसी में कफ हो तो ये होता है, और हल्दी में ये होता है ना, वो प्रॉपर्टी हम जानते थे पहले से, है ना, वो डाइवर्सिटी तो है, अब उसको हम जानते थे, लेकिन हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया था, दूसरे आए उसको प्रोटेक्ट कर ले गए और उससे पैसा कमा गए।
तो इन्हीं सबों को रोकने के लिए इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया, जिसमें हमने तय किया कि इसमें फेयर एंड इक्वल शेयरिंग होगा ऑफ द बेनिफिट विद द लोकल पीपुल्स, लोकल पीपुल जो वहाँ के बारे में जानते हैं, जो उस चीज़ को जानते हैं, जो उसका लाभ लेते आए हैं, उनको भी हम शेयर देंगे। जहाँ कुछ नया करते हैं उससे तो भी उसका फायदा हम वहाँ पहुँचाएंगे। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जोड़ा गया। ठीक है, I think this is the last one, that is geographical indication. Of course, a geographical indication is used to identify goods having a specific origin. These indications denote quality, reputation, or other characteristics of such goods essentially attributable to their geographical origin. कहीं विशेष की जैसे अभी काला नमक सिद्धार्थनगर की तरफ उसको वो किया गया, जीआई टैग किया गया है ना, तो उसी विशेष लोकेशन पे ज़्यादा होता है, तो उसको वहाँ पे जीआई टैग किया गया है ज्योग्राफिकली, वो वहाँ का इंडिकेशन है, वहाँ का विशेष है। जनरली geographical indications are used for foodstuffs, as I told you, agricultural product, wine, industrial products, and handicrafts. The geographical indications of goods, Registration and Protection Act 1999 provides for the registration and better protection of GIS linking of to goods. Now benefits क्या है GI registration से? It confers legal protection to domestic national geographical indication, which in turn boosts export. भाई अगर सिद्धार्थनगर का काला नमक जो है वो जीआई टैग है तो कहीं भी बिकेगा तो फायदा हिंदुस्तान के सिद्धार्थनगर या हिंदुस्तान को होगा, है ना। आपने कोई प्रजाति डेवलप की, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, कहीं भी दुनिया में बिकेगा उसका फायदा आपको होगा, है ना। दूसरा, prevent others from making unauthorized use of a registered geographical indication. And third one, promotes the economic well-being of producer of items produced in a specific geographic area. Okay? And now, in the last, the conclusion. तो मिला के conclusion यही है कि हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जो उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। और आपके डीसी सर मुझे भी कह रहे थे कि हम चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे, उसको ग्रुपिंग करें, वो इसीलिए कह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी डाटा कलेक्ट करें और उसको पेटेंट करा लें कि आपसे पहले कोई और उसका लाभ न उठा ले। धान की वैरायटी तुम डेवलप करोगे, फायदा ले जाएगा कोई और, है ना। तो आप भी इवन स्टूडेंट्स टू जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यूनिक वर्क और कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है, कुछ नया वैरायटी डेवलप कर दिया है, इमीडिएटली गो फॉर, है ना, प्रोटेक्शन। तो कंक्लूजन में हम ये कहेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड मेडिकल इनोवेशन कैन बी ignored at any cost. Intellectual property is a valuable asset since it provides a competitive advantage to the owner over other entities. To make the most out of intellectual property right, it is advisable to get it registered, what I am saying. And IPR is a proprietary right on the product of one's own intellect. These rights support innovation and help the innovators at every stage of the business development, competition, and expansion strategy. And lastly, it is also noteworthy that registered and enforced IPRs enable the consumers to make an informed choice about the quality, safety, reliability, and their purchase. Thank you very much. Thank you, Dr. Siddharth Suklaji. And if you have any question or anything, anyone has question or suggestion or any discussion? So thank you for setting up the stage. I think this was a perfect
perfect presentation where we have passed through all the historical things and then all the 5-6 measures which allow us to protect our intellect. Thank you very much, Dr. Siddharth Suklaji. And now, there is change in the program because Madam has to rush to Lucknow. She is also from, the name is the same of the university, the Ram Manohar Lohia University, but she is from Lucknow. And she will zoom into patent and perhaps she will not deviate perhaps from the other things. So perhaps community science people can get more information in this awareness that where patent stands and where we have to go. And Madam, I request you to deliver your presentation. If you want, you can go there, or if you want, you can also. Thank you.
and it cannot be taken as intellectual property of anyone. That is for all. So when we talk about the intellectual property, that is the intellect, but not any natural product, natural things which is available in the atmosphere. तो sometimes हम जाते हैं और जंगल में जा रहे नई वैरायटी का प्लांट मिलता है और हमने उसको लिया, तो हम उसको पेटेंट कर सकते हैं. हमने नया पहली बार निकाला है तो उसको पेटेंट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं. नहीं, हमको तो मिला है जाके. It means there is a difference between invention and discovery. That will be the discovery only. तो उसको हम as intellectual property नहीं claim कर सकते. It means जो पहले से है हमने सिर्फ discover किया है, we cannot claim as our intellectual property. So in general we term use everything created by the human mind under the sunlight, that would be intellectual property. That may be any form. So as sir said, from the very beginning there were two conventions. First was the Paris Convention, then Berne Convention. So Paris Convention is related to the industrial products, industrial property, and Berne Convention, that is related to the copyright. It means artistic and creative ideas. So here we are here for the industrial property rights. It means Paris Convention is the first convention, international convention for the intellectual property right protection. So there are different types of the intellectual property rights, as I told: patent and other geographical indication, trademark, Industrial Designs Act. So different type of the intellectual property rights has been provided. So what was the purpose for this right? As I told, tangible, intangible. तो intellectual property rights are the intangible form, जो visible नहीं होते हैं, but they have some economic value. So why there is a need to protect this intellectual property? Because it also takes time, it also needs investment of money, so it should be protected in the interest of whose? किसके इंटरेस्ट में हमें ये प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? Only inventor. In the interest of society. और इन्वेंटर को पेटेंट करके हम क्या देना चाहते हैं? Just we want to reward him. अगर उसको कुछ फायदा नहीं होगा तो he will not go for further invention. And in this way the development process will be stopped. कुछ नया आपने किया, कुछ मिला नहीं, सालों साल मेहनत लगाई, बहुत सारा पैसा खर्च किया और कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ भी नहीं, तो it would not be again done by that person or any other person. So purpose क्या है? To protect the right of the person who has invented that particular new things and give the benefit to the society. उसने जो कुछ किया है उसका benefit भी society को मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने invention करके चुपचाप रख दिया. So it is for the both. Society के interest में भी ये rights हैं और the person inventing or doing something new, that must be protected. So two types of protection we can say there are two types. एक तो exclusive use. By the giving protection of your intellectual property, you have an exclusive right to exploit it. कोई और उसको use नहीं करेगा. And to defend others, restrain to others. दूसरों को आप रोक सकते हैं और आप एक्सक्लूसिवली उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो बाय द इंटेलेक्चुअल राइट यू विल गेट टू टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन. एक तो हम एक्सक्लूसिव यूज करेंगे और दूसरा हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द लॉज, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यू विल नॉट बी एबल टू रेस्ट्रेन टू अदर्स यूज. अभी सर ने बताया अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कॉपीराइट या पेटेंट और अदर फॉर्म और अदर ट्रेडमार्क्स, then you will be able to protect others and get benefit of it. So in agricultural field, when we talk about the agricultural product services and goods, so how it can be protected? If you are writing research paper, you can protect the copyright, but if there is some kind of protection, new variety, new method, new process, so how it can be? So for this there is the in India Patent Law 1970 Act
And what is the other? Protection of plant varieties and Farmers' Right Act. That is. And sometimes geographical indication is also in the favor of the general community people. They may be the farmers or other kind of the community persons. So there are some type of products like handicrafts or some other things that can be protected. As in Lucknow chicken curry, Kolhapuri chappals, Bikaner bhujia. These are some products which are exclusively given to the geographical indication. It means there must be geographical area application. उनका product जो है उस पे mention होना चाहिए that is from that, and it should be produced on that particular area. And if geographical indication is given, so there must be some characteristics of that particular area. जैसे बासमती राइस हम यहाँ नहीं grow कर सकते. We cannot get the same quality if we grow here. It means some geographical conditions must be required for that. So it should be produced that. So in this way, the product will get protection, and the community involved with that protection will also get benefit of that. से जो commercialization से जो भी profit आएगा, that also should be given to that particular community involved to make that product or to produce that particular product. That is for the geographical indication. And the patent is the most important and powerful tools to protect the plant varieties. There is the Plant Variety Protection and Farmers Act, but on international level, when we say there is a Patent Act, and TRIPS came in 1995. TRIPS agreement, that is the international agreement, and India signed it in that particular agreement. So it means TRIPS provides minimum standards for the protection of intellectual property rights to every country. So side member must have to follow a minimum standard that should be according to the TRIPS agreement. But there is also one clause 27. If the country wants, the state wants, they make their sui generis system. It means वो अपना खुद का law भी बना सकते हैं, and it should be according to the TRIPS agreement. So in this way, India also signed this treaty, this agreement, and Amendment Act 1970 was amended in 2005 according to the TRIPS agreements. तो agreement के बाद what happens? अब हमारे पास पेटेंट एक्ट है, और पेटेंट एक्ट में हमें पेटेंट करने के लिए some criteria. What should be? There are 3 basic criteria. How it can be patented? First क्या होना चाहिए? Novelty. It means it should not be known in prior. पहले से किसी के knowledge में नहीं होना चाहिए. If you are going to protect patent something under the Patent Act, first criteria is novelty. It means prior art में नहीं होना चाहिए, public में नहीं होना चाहिए, किसी के भी knowledge में नहीं होना चाहिए. And second, non-obvious. It means some inventive steps should be involved. आपने कुछ उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स फॉलो किए, एज इट इज नहीं है, कुछ आपने किया है, नया है, लेकिन उसमें कुछ इन्वेंटिव. एंड थर्ड इज यूजफुलनेस और यूटिलिटी. इट मींस उसका पब्लिक यूज क्या है, सोसाइटी में उससे क्या बेनिफिट होगा. इफ दीस 3 क्राइटेरिया फुलफिल्स, देन यू कैन गो फॉर द पेटेंट फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस और मेथड और प्रोसेस. दैट कैन बी इफ 3 कंडीशंस fulfilled, then you can go for the patent. And the biotechnology, that is a very important area for the agricultural field. So when we start the patent, it means if you have one product, that is 3 conditions fulfilled, then you have to apply for the product. But before applying, you have to know what the objections come. What is not patentable, नया है और कुछ नेचर से रिलेटेड है, based on the principles of natural law, natural doctrine, then it cannot be patented. नेचर में कोई चीज़ आपने उसमें कुछ नया किया, इन्वेंटिव स्टेप्स डाले, उसका कॉमर्शलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पेटेंट
नहीं हो सकता। So on the plant patent, अगर हम देखते हैं तो US in 1930 US Act was passed for the protection of the plant varieties. So it was given protection to the vegetatively propagated materials. उन्होंने जो पेटेंट दिया था 1930 में सबसे पहले एक्ट के थ्रू, इट मींस vegetatively propagated materials को दिया। And after that, in India, what the situation is? If any new process is there that is related to the agriculture, that can also be protected. So when we talk about the patent, so natural breeds, seeds and human cloning की बात सुनी होगी आपने। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पेटेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑन्कोमॉस केस पढ़ा है किसी ने, सुना है? हार्वर्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट but for the animal it is possible. So this was started in the Chakrabarti case, Oncomouse. So that at that time it was said that living organism that can be patented. Biotechnology is very important area for the patent because it gives chances to grow new varieties, new seeds, new things. You have listened about the BT cotton issue. What was that? BT cotton issue. So patent was given to the MNCs and in Maharashtra, and what happens? You have to purchase the seed from them and every year because they cannot reproduce with that. Every year you have to purchase, and if you are growing that particular cotton, you have to take the pesticides from them to protect from the other insects. This was the situation. So once the farmer उन्होंने लोन लिया गया, उसके बाद बहुत सारा साइड आया था कि बीटी कॉटन इशू इसीलिए बहुत ज़्यादा हुआ कि उन्होंने लिया, फिर इतना कॉस्ट उसका जा रहा था कि वो उतनी ज़्यादा उसके लिए पेस्टिसाइड्स नहीं ले पा रहे थे, नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो बहुत पढ़िएगा, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा इस पे बीटी कॉटन इशू पे। एंड इट वाज अलाउड बाय द अथॉरिटीज टू सेल हियर एंड व्हाट द रिपरकशंस, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा सुसाइड केस हो गया। फिर इसी तरह से बीटी ब्रिंजल करके भी आया था, बीटी ब्रिंजल एंड टोमेटो। व्हाट वाज द इन दैट केसेस देयर वाज सम एथिक्स इन्वॉल्वड इन दैट केस। इट मींस क्या होता है कि हम जब कोई प्रोडक्ट देते हैं, आजकल मार्केट में है, तो या तो रेड निशान होता है या ग्रीन उस पे बना होता है। व्हाट डज इट मीन? वेजिटेरियन। तो जो टोमेटो के इसका जो टोमेटो बना था उसमें उन्होंने क्या इन्वॉल्व किया था? व्हेल का एक जीन डाला था, व्हेल का एक जीन डाला था। व्हेल उससे क्या होता है, बहुत ही फ्रेश और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो अच्छा सा रहता है ट्रैवलिंग। बट इफ द पीपल आर नॉट नॉन-वेजिटेरियन तो दे कैन नॉट, बट देयर इज नो स्टिकर ऑन दैट टोमेटो। तो एक ये एथिक्स भी इन्वॉल्व हुआ। ब्रिंजल में क्या था कुछ, जैसे कि उसमें भी इसी तरह का यूज हुआ था कि अगर वो वैरायटी आप प्रोड्यूस करोगे कोई भी उसमें इंसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसमें भी जो यूज किया गया था जेनेटिक मटेरियल दैट वाज सम एनिमल दैट इज प्रोहिबिटेड बाय सम कम्युनिटी दैट कैन नॉट बी यूज्ड। So these are some types of the issues. On that ground, these patents were rejected. Am I right, ma'am? So if we are using the biotechnology, because we have to use, as the population is growing, there is a need more crops to fill that population.
So there is a scope in biotechnology, a lot of in your agricultural field for the patent. So there are the objections. I was discussing what are the objections which cannot be patented. Farmers' rights are protected, varieties are protected. Who can protect? कुछ नया आपने इनोवेट किया है, मेथड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द पेटेंट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल। आप प्लांट वैरायटीज में जाएंगे तो उससे भी पेटेंट सबसे पावरफुल है, बट इंडिया इज द वन व्हिच हैज द फर्स्ट टाइम इनेक्टेड एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट इन 2002। So if there is a product of nature, then it cannot be, as I said, आपने कोई डिस्कवरी कर ली है in the act, तो आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसको पेटेंट भी नहीं कर सकते। And patent of the plant, it means which plant naturally occurs in the nature, it cannot be patented as is the natural product, natural principle. And if there is a lack of novelty, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर कोई lack of novelty, आपने बनाया, मेथड फॉलो किया, प्रोसेस फॉलो किया, एक नई वैरायटी आपने डेवलप, जैसे अभी ये पेप्सिको केस आया था, पढ़ा होगा आपने, चिप्स, अंकल चिप्स, उन्होंने प्रोटेक्शन लिया था उस पर्टिकुलर वैरायटी का, जो आलू है उनका जो पोटैटो है उसमें कम मॉइस्चर, तो उससे अच्छी वैरायटी के चिप्स बनते हैं, तो दे गेट प्रोटेक्शन फॉर 6 years, बट नाउ द बोर्ड हैज रिवोक्ड दैट प्रोटेक्शन बिकॉज इट वाज नॉट न्यू, इट इज ऑलरेडी, एंड द फर्स्ट टाइम द पर्सन produced it by the using the method, he has not taken any protection, but PepsiCo company says that it is my own production and we take the protection, but after 6 years when he will, the company went for the renewal, it was revoked by the board, and after the appeal to the Delhi High Court, Delhi High Court also, it means कुछ नया है लेकिन आपका खुद का अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कुछ इन्वेंटिव स्टेप शुड बी इन्वॉल्व। इफ someone has made the patent and you are producing that particular product by reverse technology, then it can be protected, it cannot be protected। आपने कहीं से बता दिया प्रोसेस और आपके इंस्ट्रक्शन का पेटेंट करने की कोशिश, it means reverse technology also cannot be patented or protected। So if there is a lack of novelty, कुछ नया नहीं है, and non inventiveness process है, it means कुछ obvious कुछ स्टेप्स नहीं फॉलो किए गए, नॉन ऑब्वियस है, कोई स्टेप्स नहीं फॉलो किए गए हैं, then also you cannot go for the patent of that particular product or service। For example, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोसेस है, हमारे यहाँ फार्मर्स पहले क्या होता था, पहले तो ब्रीडर्स नहीं थे, कोई नई वैरायटी नहीं मिलती थी, हम गए और शॉप से लेके आए, उसमें सो किया और बोल दिया, जो अच्छे से बीज होते थे, फसल कटती थी, अच्छे से बीज उसके निकाले, उसको रख दिया कि नेक्स्ट ईयर हम इसको फिर से so that is a traditional breeding process। So it is the prior art in the knowledge, prior skill, so it cannot be patented। आपने कहा नहीं हम इतने दिन से ये यूज कर रहे हैं, बार बार रख के निकाल के और हम इसको पेटेंट करा लेते हैं, नहीं कराएंगे, because there is no inventiveness involved, no, it wasn't, and if there is a lack of industrial application, कोई इंडस्ट्रियल यूटिलिटी नहीं मीन्स उसका कुछ कमर्शियलाइजेशन नहीं है, कमर्शियलाइजेशन जरूरी पब्लिक इंटरेस्ट है, तब भी आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते। तो इफ आप कुछ पेटेंट कराना चाहते हैं तो नॉवेल्टी होना चाहिए, शुड नॉट बी अगेंस्ट द नेचर डॉक्ट्रिन होना चाहिए, सम इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए और उसकी
कॉमर्शियल एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी को कुछ बेनिफिट। If these are the four conditions fulfilled, then you can go for the patent of that particular product, or if you have any service or any process. And if the breeders produce something then breeders and मान लीजिए कि उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी लगाई, इन्वेंटिव स्टेप्स इवॉल्व किए और प्रोड्यूस किया, and there is no commercial utility, then patented। ये हमारे पास पेटेंट करके रख लिया, जब हमारा मन होगा तब हम उसको करेंगे, हमने ही पब्लिक के लिए डायरेक्ट कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करना, then it will be पेटेंट कर सकते हैं नहीं। ये जो हमारा इसका मोस्ट ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट, दैट सब लोग कौन से हैं? तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम देखते हैं कि यूएस ने सबसे पहले प्रोटेक्शन किया, फिर इसके लिए दिया उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन वाज गिवन बाय यूएस इन 1932 एंड इट वाज फॉर asexually produced plants। टिपिकली जो asexually produced हुए ना क्रॉस कराए हुए, दैट फॉर दैट इट मींस टोटल जेनेटिकली इंजीनियरिंग पे बेस्ड उनके लिए ये वर्क एक्सेप्ट द ट्यूबर जो अपने आप ग्रो करते हैं, उसको ग्रो करके ये देखिए asexually produced plants को यूएस ने 1970 में उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट को भी प्रोटेक्शन दिया, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्ट प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट 1970 से 30 में उन्होंने इसे किया और 70 में एक्सटेंड करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड को भी और इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ दी वैरायटीज एंड द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स थे उनको भी दिया है, जिनको मार्केट में सेल करने हमने और कॉमर्शियलाइजेशन और अपने यहाँ क्या है 2005 में बाय द इनकॉन्स्टिट्यूटेड एग्रीमेंट अमेंडमेंट हुआ और पेटेंट एक्ट में भी अमेंड करके अलाउ किया पेटेंट को प्लांट वैरायटीज में, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस करके उन्होंने 3 सेक्शन 3 डिफाइंस व्हाट इज द पेटेंटेबल और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया उन्होंने JHI ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया अपने इंडियन पेटेंट एक्ट। It means the plants other than microorganism, including the seeds varieties. Plants and animal other than the microorganism, including the seeds varieties. ये हमारा 2002 में ऐड किया गया। Objection, restriction. सर ने तो बहुत अच्छे से बताया कि section wise I am not looking at every section, but in short because there is a time scarcity, and I hope कि I will meet you in next meeting where section wise I will detail in discuss. Here so what plant, animal and other microorganisms that was not allowed before the 2002. पूरा हुआ था 2002 से अलाउ हो गया कि इसके अलावा जो चीजें हैं वो आप पेटेंट करा सकते हैं प्लांट वैरायटीज। नाउ पेटेंटिंग द लाइफ फॉर्म एज पर 3H इज रिस्ट्रिक्टेड। लाइफ फॉर्म को हम प्रोडक्ट एज टोल्ड बाय समवन लाइफ फॉर्म को भी हम पेटेंट नहीं करा सकते, बट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर and horticulture can be protected। जो मेथड्स होंगे लाइफ फॉर्म को तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मेथड्स होंगे उनको भी हम पेटेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट द एक्ट इज 2001 it means the breeders has right and also the farmers has right to say, to sow and resow and exchange, share, sell branded seed of the protected varieties। मान लीजिए कोई protected varieties है तो farmers भी उसको as a brand उसको सेल कर सकते हैं, सेल
भी कर सकते हैं और तो कर सकते हैं। जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने भी कुछ अपना किसी मेथड से फॉलो करके एक वैरायटी उन्होंने डेवलप की है, तो बाय ब्रांडिंग दे कैन आल्सो सेल। Leaders, research process R&D involves a lot of legal formality and a huge money for the research work that is time taking and costly. So if they are involved to develop new variety techniques, they must be get benefit what they invest. They must give return of that. That's why they have right to get protection and economic growth. In this way, it will also give benefit to the readers and benefit to the society by that particular product. So government or the object of the act for the protection of the plant variety or the patent act is that to give benefit to the right holder and give benefit to the society vice versa. So therefore, but if there is a giving patent or allow any new variety, new seeds, there must be procedure, there must be follow the procedure for testing. कुछ हम नई वैरायटी ले रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो it takes time, 10 years, 20 years, you must have to test that, what will be the effect of that. BT cotton में क्या हुआ था कि properly जो testing process है that was not followed by the authorities. उन्होंने इसलिए उनको allow कर दिया इसको सेल करने। एक बार आपने सीख लिया उस पर कितना हम पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं, क्या कितनी कॉस्ट आ रही है और इसके बाद भी हम उसको सेव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इन दिस वे the authorities role become very crucial and very important. If any new variety coming, getting the patent, other protection, so before going to the public, it must be tested all the following. There are the 7-8 steps how it has to be tested. So you will be aware if you are doing something in this field, what are the steps and how it has to be tested. If these tests has been passed, BT cotton में क्या हुआ था, 4 steps के बाद फिर उन्होंने नहीं की, इसलिए उसको अलाउ कर दिया। So there must be strictly by strict rules by the government before going to the public any product or any other things. So thank you. Questions if you have any. As a certain patent में there is a 20 years in general, but there are criteria different for different products accordingly. Any question? Yes. Question, discussion, knowledge sharing. I know many of you must have by this. I know this, right? You have many questions. Go ahead, please. पूछो। डाउट from बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी होगा मैंने तो पढ़ने से मैं जानता हूँ। अगर इधर आए कोई भी डाउट हो कंफ्यूजन भी होगा मैं। What is the procedure patent registration? Procedure. Here is the not the detail. Enough time to give the detail. But if you produce any new variety or any new product, then there is a board, patent authority office in India. There is an office in Nagpur, Mumbai. So you have to make your product with fulfilling these 3 criteria. You have to file an application. As some ma'am said कि अगर हम पहले से disclose कर दें क्या, if there is a need of disclosure, so you have to disclose your idea, your product, your things in the office only, not to the public. And if you applied there, there is a time period. Within that time period, if no objection coming, then you will get the patent of that. Fees is different for different products. It is not the fixed for specifically आपको इतनी फीस देनी है.
but you have to apply. That is the helping money. But if you are taking product patent for anything or the process, so you will get. उसका वेबसाइट है इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उस पे जाइए and you have all the You information. will get the application form there. Download if you have done some, it will be in the future. Thank you, ma'am, for your valuable information and idea. Now this is our lunch break. We will gather after half an hour here, and our technical session will start after half an hour. So you are requested to attend the second technical session. Okay? अभी सर्टिफिकेट मिलेगा, बोल के And we will issue a certificate. Attendance is mandatory for all. half an hour